we are going to comprise in this session, right? And if you have any doubt, anytime you are free to ask the question, right? And I would like to do this entire session the very much we can say that in the description in the more discussion way. Okay, so thank you for the joining, and I hope that all your preparation is going well, right? So we have very what we can say very precise time. Uh, few days now, we can say the few days is just we have in our hand. So put your best effort, right? Okay, not going much taking time. Just I'm going to start the session. Just please confirm me that my slide is visible and my voice is clear. So just you can just anybody just update. Yes, clear. Thank you, Desire, right? And I hope that the slide is also visible. Okay, right. So just I'm going to start with this thing. So once again, and one more, I'm just going to update to you that previous session already I have recorded what we have done for 1.5 hour session, that we have discussed about the IBR. Little bit we have discussion about the IBR, but many things just uh, still balance regarding the forms, regarding the what we can say the registrations, and in the deep of the breach of the rules, and many things still we can say the balance in the IBR part, and what are the things which is going to introduce in the new uh, boiler rule 2025. And apart from that also I would like to add some more what we can say the more topic as the syllabus is um have updated. So that part also I'm going to take, and all the data relevant with that thing I'm going to collect, and very soon I'm going to present that all. And uh, that will definitely going to help to you. So once again, welcome to all of this. This session is very, I think we would, this is my this topic is very much near to my bottom of my heart. So I hope that this session, this two failure session, is going to be very much interactive and very much comprehensive to you. And I request to everybody that don't wait to write. If you have question, what the question you are thinking about, what the thing is going inside your mind, just the same time you just we can say just you ask. Sanjay, namaste. Nilden. Ciao. Okay, sir. So yes, before starting, yes, before starting, just I would like to do one very what we can say the one small activity I would like to do, right? As the famous, what we can say the in the KBC, there is one thing is going on that is called the faster finger fast, right? So here also I would like to do with the small, what we can say this is called we can say the ice breaking activity, right? So that the participant will engage and connect with my the session. So what you have to do here, one you are getting one QR code, right? QR. So you have to scan the QR, and what happens, you will get one question. Okay, that is we can say the arrange the following. Just yeah. So I hope that everybody is getting. Yes, just give me your response.
Yeah. Yeah, sorry, I was disconnected. Sorry. So yes, so uh, yes, so what you have to do, you have to arrange these all options like the raw water, tap water, river water, pond water, and sea water in the category of high to low TDS quickly. So for that, you will get only the, I think 2 minutes this time is enough to do it. Okay, and then we'll start the main part. Okay, so everybody got it? What you have to do? भाई सभी को पता चल गया कि इसमें क्या करना है? If anybody have any doubt about that, so you can please just you can. Yes, सभी ने वो QR कोड स्कैन हो गया? Yes, Vipul, Jamin, Utsav. Not yet. Just brief me what we have to do. देखो उसमें क्या करना है कि उसमें के क्यूआर में आपको 5 ऑप्शन दिख रहा है। वो 5 ऑप्शन क्या है कि अलग अलग जगह के वाटर के सैंपल्स हैं। ओके, रॉ वाटर है, टैप वाटर है, पॉन्ड वाटर है, रिवर वाटर है, सी वाटर है। तो आपको क्या करना है कि हाई से लो टीडीएस, ठीक है, हाई से लो टीडीएस को आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है। मतलब जिसका टीडीएस यू फील कि भाई इनका टीडीएस सबसे ज्यादा होगा, सो दे विल हैव इन 1, फिर उसके बाद में 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, और जो सबसे जिनका टीडीएस कम होगा, राइट, वो सबसे लास्ट में आएंगे। गॉट इट? Yes. तो फटाफट इसको स्कैन कर लो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और करो। कोई दिक्कत, देखो भाई हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जस्ट वी आर लर्निंग, वी आर डूइंग द प्रैक्टिस, ठीक है ना? सो प्लीज फर्स्ट थिंग प्लीज फील फ्री, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, जो भी आपको दिक्कत होता है प्लीज बताओ एंड देन वी कैन प्रोसीड इट, ठीक है? सो आपको क्या करना है कि ये जो क्यूआर कोड दिया हुआ है, इस क्यूआर कोड को यू हैव टू स्कैन, ठीक है? स्कैन करके उसको हाई से लो टीडीएस में उसको अरेंज कर दीजिए, हाई से लो टीडीएस में। और टीडीएस जो है, आप डेफिनेटली कि भाई आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो यू नो अबाउट दैट कि टीडीएस इज आल्सो रिलेटेड टू द कंडक्टिविटी। तो वो चीज से भी आप इसको समझ सकते हैं कि मतलब लो टीडीएस मतलब लो कंडक्टिविटी, मतलब हाई कंडक्टिविटी से हमको लो कंडक्टिविटी पे आना है। गॉट इट? सो डू इट क्विकली, and if somebody has done, then write in the chat box quickly, then I move. और after the completion of the session I will declare the result कि भाई किनका जो आंसर है सबसे कम टाइम में सही हुआ, एंड डेफिनेटली आई विल ट्राई टू गिव सम अवार्ड आल्सो, ठीक है?
यस, होप दैट एवरीबडी इज डन, क्योंकि भाई इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए. चलो मैं ग्रुप में भी डाल दिया. सो इफ somebody कैन डू. ओके. Now we are going to start the main. I hope that everybody has done. चलो. सो कम टू द मेन पॉइंट कि भाई जब हम बात करते हैं कि भाई हमारा बॉयलर का ट्यूब फेल हो रहा है, राइट, या फेल हो रहा है या फेल हो जाता है, ठीक है. सो व्हाट कुड बी द बेसिक रीजन, या क्या उसका पिलर है. तो हम देखते हैं कि कोरोजन हो सकता है, या ऑक्सीडेशन उसमें हो जाता है, या वी कैन से दैट वी कैन ड्यू टू द वी आर गोइंग टू ऑपरेट एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. ठीक है. तो वो उसको बोला जाता है कि भाई उसमें हमारा ट्रिप हो गया है ना, क्योंकि हम वी ऑपरेट वेरी हाई टेम्परेचर, मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस, 550. अभी तो जो वी हैव द न्यू बॉयलर्स व्हिच इज वी कैन से द अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बॉयलर व्हिच इज रनिंग ऑन मोर देन 600 डिग्री सेल्सियस, है ना. मेन स्टीम टेम्परेचर क्या हो रहा है, नाउ वी गोइंग टू रीच टू 600 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. तो erosion भी हो रहा है because we are using the ash, and ash we are using the coal and which is having the very high content of the ash also, and ash has the nature of the abrasive. ठीक है. And also one important factor is about that your load is always not the fix, it is changing. and अभी के recent जो हमारा challenge है that in coming next decade, that we have to operate on the flexible mode of operation. So for that we have to pick the one minimum technical load, है ना. ये सब चीज आप सुने होंगे, राइट. तो these all are the threat, these all are the challenge for our tubes. ठीक है. And boiler life. So how we can go to मिनिमाइज इट और प्रिवेंट इट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बट बिफोर मूविंग दैट, कुछ जो बेसिक जो पैरामीटर है ना, दैट आई वांट टू शो, बिकॉज दीज क्वालिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है.
जैसे अपना फीड वाटर का पीएच जो वी आर गोइंग टू जनरली दिस डेटा आई एम गोइंग टू शो फॉर द which boiler is going to operate for more than 100 degree Celsius, 100 kg per centimeter square. So ये उनके लिए है, right? So feed water, what we can say, the pH is 9.3 to 9.7, and conductivity max to max is to the 5 to 20 microsiemens per cm. And the CBD or drum pH is your 9.6 to 9.8, and conductivity maximum is the 75 microsiemens per cm. Silica for main streamline it should be always should be less than 20 ppb, and if we talk about the drum it should be less than the 500 ppb. Like for the sodium in main streamline should be less than 10 ppb. Then also the TOC total organic carbon in feed water it should be less than 1.2 या less than 2 भी हम कंसिडर रखते हैं, and in drum it should be less than 3 और less than 5 भी हमारा रहता है. Then process condensate है, so for that we considering the ORP, that is your oxidation potential reductions. So उसका क्या रोल है वो भी हम आपको बताएंगे. And chlorine जो है so that should be less than 50 ppb, ठीक है, okay. Then derator का जो हमारा DO का है, so residual or we can say the removal of after the oxygen, right, it should be less than 7 ppb, right, that is called the dissolved oxygen. Cation conductivity is less than our 100 microsiemens per cm, specific 100, and your main streamline का जो degas conductivity है वो भी आपका less than 100 microsiemens per cm रहेगा. Then total hardness should be nil as we are going to consider through the calcium carbonate के basis पे. And iron and copper जो रहेगा वो main streamline में iron should be less than 10 and copper should be nil. And phosphates के लिए if we are going to operate for the 100 kg boiler so it is your 5 to 10 ppb. तो ये हमारा basic structures है. Now come to our वो हमने स्ट्रक्चर रखा कि भाई ये चीज तो अपना इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है. Now the problem associated with the boiler through which the tubes fail, क्यों होता है, किसकी वजह से हो रहा है ट्यूब फेल हो रहा है. तो I have listed out the major reasons: scale, not proper cleaning, carryover foaming, priming, corrosion, caustic embrittlement, hydrogen embrittlement, oxygen pitting, oxygen corrosion, cold in corrosion, phosphate hideout, silica carryover, and fatigue failure. Now I am going to explain in detail of one each of that, ठीक है. तो अभी सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि भाई ये स्केल का क्या रोल है, राइट, और क्या ये हमारे बॉयलर ट्यूब को इम्पैक्ट करता है. इसलिए जब भी हम आइदर वी आर गोइंग टू ऑपरेट द मीडियम साइज ऑफ द बॉयलर जो 40 केजी 50 केजी के बॉयलर जो हम ऑपरेट कर रहे हैं, या हाई प्रेशर बॉयलर हम ऑपरेट कर रहे हैं, सो जहां पर भी हाई प्रेशर टर्म्स यूज किया जाता है मींस द बॉयलर इज ऑपरेटिंग टू प्रेशर ग्रेटर देन 80 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एज पर द आईबीआर, है ना. तो उसको बोला जाता है कि ये हाई प्रेशर बॉयलर. 80 केजी से ऊपर रहेगा तो हाई प्रेशर बॉयलर हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है. और ये बॉयलर का भी कैटेगरी है कि भाई जो बॉयलर जब हम रिपेयर करते हैं तो उसके लिए होता है क्या, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ठीक है, एंड स्पेशल क्लास. सो क्लास 1 हम कंसीडर करते हैं अप टू 7 केजी. क्लास 2 जो अपना आता है क्लास ए, क्लास बी अपना रहता है योर 7 टू 40 केजी. क्लास सी जो रहता है 40 टू 80 केजी, एंड 80 केजी से ऊपर जो हमारा रहता है वो है हाई प्रेशर और वी कंसीडर द स्पेशल क्लास, ठीक है. नाउ कम टू द पार्ट ऑफ द डिपॉजिट्स. सो डिपॉजिट कैसे आता है, आप बताते हो कि भाई सर हम तो डीएम वाटर यूज कर रहे हैं, बट हु इज द मेन फैक्टर, कौन सा ऐसा जो वाटर में सॉल्युबल पार्ट है जिसकी वजह से हमारा डिपॉजिट्स होता है. नाउ यू सी ऑन द राइट साइड द फिगर, ठीक है ना. देखो कैसे कैसे हो रहा है, एंड दिस डिपोजिशन इज योर इन द वेरी गोइंग टू सेटल बाय लेयर ऑन द सर्टेन टाइम बीइंग, ठीक है. तो इसका मेन जो फैक्टर होता है, मेन फैक्टर जब भी हम इस तरह का चीज ऑब्जर्व किया है ट्यूब फेलियर में, राइट, बिकॉज आई हैव ए बैकग्राउंड ऑफ द सर्विस इंजीनियर, ठीक है ना. हमने 3-4 साल बॉयलर सर्विस इंजीनियर में हमने काम किया, ट्रबल शूटिंग हमने देखा है, बहुत बार हमने शट डाउन
हमने अटेंड किया है, ट्यूब फेलियर्स को हमने देखा है। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट कि भाई जब भी इस तरह का चीजें होगा, सो वन थिंग इज कॉमन इन ऑल दिस काइंड ऑफ द फेलियर is your deposition, is your scaling. And when we cut down that sample and send to the laboratory for the further study, right? So what we conclude, we observe that it is full of the calcium and magnesium salts, right? किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स, राइट। तो जब भी आपका जो स्केलिंग है ना, ठीक है, जब हम बात करेंगे, देखो बहुत अपने को ना अभी ध्यान से आप एक एक चीज को समझते जाइए, सुनते जाइए। मैं इसको पूरी कहानी की तरह आपको बताऊंगा और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार जब आपको इसको समझ लोगे ना, तो यू कैन हेल्प टू योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो स्केल अलग पार्ट होता है, डिपॉजिट्स अलग है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओनली स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। स्केल क्या होता है, उसका नेचर कैसे होता है भाई, कि वो ट्यूब्स के अंदर इज गोइंग टू फॉर्म्स बाय लेयर बाय लेयर। हाउ, आप पूछोगे सर कैसे, कैसे वो लेयर बाय लेयर होगा? तो देखो फॉर दैट इफ योर वाटर हैव, क्योंकि देखो यहाँ जो हम बात करते हैं ना, वी आर गोइंग टू टॉक द what are the solubles which is going to moving with our feed water, है ना, जो कि हमारा मान लो डीएम टैंक से हमने लिया, उसके बाद हमने उसमें जो भी रिक्वायर्ड डोजिंग किया, एलपी डोजिंग किया, ओके, हमने पीएच को बूस्ट किया, मॉर्फोलिन डाला या फिर जो भी हमने लिक्विड अमोनिया डाला, एमाइड डाला, व्हाटएवर, राइट, ओके। एंड इफ your boiler, that feed water is having the very small content of the calcium and magnesium, but after the certain time being क्या हो रहा है यहाँ पे, जस्ट देखो, जस्ट यू सी हियर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज, क्योंकि वो हीट के प्रेजेंस में आ रहा है, सो व्हाट हैपेंस, वो CaCO3 बन रहा है। बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। CO2 वो वाटर में आगे मूव करेगा, और वो भी क्या करेगा, CO2 जो मूव करेगा वो भी आगे जाकर कहीं ना कहीं वो वाटर को, बॉयलर वाटर को इम्पैक्ट कर रहा है। वो कैसे करेगा, वो आगे आएगा, ठीक है, वो चीज़ है। देन फिर क्या हो रहा है कि उसी तरह से कैल्शियम का हो गया, उसी तरह से मैग्नीशियम में भी अगर कार्बोनेट्स है, बाइकार्बोनेट्स है, तो ये क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ द हीट, राइट, ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे वहां पे प्रिसिपिटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रिसिपिटेट हो रहा है, जमा होते जा रहा है, राइट। एंड आफ्टर सम टाइम्स दिस विल बी द पिक्चर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जो हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम विच वर द सॉल्युबल was that start the scale deposition, वो स्केल के फॉर्म में लेयर बाय लेयर बैठना चालू किया, और अंडर द व्हाट वी कैन से द हीट प्रेजेंस, जो उस पे हीट रहा, सो व्हाट इट विल बी हैपन, वो क्या कर दिया, इट वर्क लाइक द इंसुलेटिंग, क्योंकि जो बाहर का हीट है, बाहर में जो ट्यूब्स में जो हीट लग रहा है बाय बर्नर, बाय कोल फ्लेम, है ना, बाय एनी फ्यूल, क्योंकि आउटसाइड में क्या है, वी हैव द हीट, तो उसके वजह से नॉट गोइंग टू प्रॉपर हीट ट्रांसफर, वो बाहर का जो उसका मेटल टेम्परेचर है, दैट इज नॉट गोइंग टू ट्रांसफर द हीट टू द इनसाइड ड्यू टू दिस डिपोजिशन। सो आफ्टर सम टाइमिंग क्या होगा, द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू स्टार्ट दैट बल्जिंग। भाई सबसे पहली चीज, जो सबसे पहला जो चीज होता है, अगर डिपोजिशन होगा तो 200% भाई 200% पहला काम होगा कि ट्यूब आपका बल्ज होगा, राइट। आर यू एग्री विथ मी और नॉट, ठीक है। क्यों बल्जिंग हुआ, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर होना चाहिए वो नहीं होने दे रहा है, वो डिपोजिशन की वजह से वो नहीं होगा। तो क्या होगा, वन साइड में जहां पे वो फ्लेम लग रहा है, चाहे वो सुपर हीटर का ट्यूब हो या आपका बेड का ट्यूब हो, वाटर वाल का हो, ठीक है, सो इट स्टार्ट फर्स्ट बल्जिंग, ठीक है, पहला वो उसमें काम क्या हो जाएगा, बल्ज होना चालू होगा, ठीक है। एंड आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड, ठीक है ना, सर्टेन टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगा,
it comes in the picture of the long term overheating and उसमें होल हो जाएगा। ठीक है, बस अभी इतना ही चीज अभी कहते हैं। अभी इसके बाद का जो चीज है ना, दैट इज द टू वे, वन इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म ओवरहेटिंग एंड वन इज कॉल्ड द लॉन्ग टर्म ओवरहेटिंग, एंड देयर आर ह्यूज डिफरेंस इन बोथ ऑफ दैट। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, 1 लीटर डिपोजिशन हुआ और डिपोजिशन होने की वजह से बल्जिंग हुआ, और बल्जिंग होकर के आफ्टर ए लॉन्ग टाइम पीरियड उसमें एक होल हो गया। ठीक है, राइट, बस इतनी ही बात अभी हमने किया है। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा इससे और आगे जाते हैं। दिस वी सी द फेस ऑफ वन कॉइन। हमने अभी कॉइन का एक फेस देखा, अनदर फेस इज ऑल्सो देयर, कि भाई जब ये स्केल होगा और क्या होगा, तो ये स्केल होने की वजह से देयर विल बी द फ्यूल लॉस, है ना। जो हमने एक स्टडी के बेस पे एक डेटा आई वुड लाइक टू प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, कि अगर जो स्केल है इनसाइड द ट्यूब्स, इफ द स्केल इज just of 0.3 to 5 mm, means only 0.3 mm, then your annual fuel loss will be the 10% increase. If your, what we can say, your 0.6 mm का अगर डिपोजिशन हुआ है बॉयलर में, then it costs to 15%. And suppose if the thickness of your scaling inside the boiler tube is 1.5, then 40% your fuel cost will lost. Then you will ask the question, okay sir, how, what we can do in this scenario, what should have to do? So for that we have to go with the chemical cleaning. लेकिन जब आप बोलोगे तो किस बेसिस पे आप, यू कैन डिस्कस विद द मैनेजमेंट को कैसे बताओगे कि सर हमारे बॉयलर को केमिकल क्लीनिंग की जरूरत है या जरूरत नहीं है? सो फॉर दैट वेरी स्टैंडर्ड ग्लोबली सेट वन रूल, कि भाई अगर आपका सब क्रिटिकल बॉयलर्स होगा, मतलब बॉयलर विच इज ऑपरेटिंग बिलो ऑफ 180 केजी प्रेशर, है ना, 180 केजी प्रेशर या लेस देन सब क्रिटिकल प्रेशर हम कह सकते हैं 220 से बिलो पे है, सो दैट इज कॉल्ड योर सब क्रिटिकल। फॉर उसके लिए अगर इफ द डिपोजिशन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में, इफ वी आर गेटिंग द लेस देन 15 milligram, means your boiler is clean, and that we can take through the random places. Sample we can take the random, means we can take the some samples from the water wall, some samples we can take from the, if we have ABC CBC then we can take evaporator, right. In sometimes we also take from the banks, boiler banks, we can take the samples of the superheater. But if our deposit weight is comes to the more than, for subcritical more than 25 milligram per centimeter square, then we can say this boiler is dirty and we have to go with the chemical cleaning, right. And for supercritical it should be greater than 40 milligram. Supercritical it is 40 milligram. So might be this type of the some small, they can put the data over your MCQ, right. So the purpose of cleaning क्या है? Yes, obvious that prevent from the tube failure, enhance more effective heat transfer, और वो जब बेटर होगा then equipment integrity, reliability will improve, it will generate steam generation capacity will improve, because जो आपका water volume भी है वो भी कम हो जाएगा ना, if the deposition will be there, so that will improve, and plant outage we can minimize. ठीक है, so what would be the method? So there are major two methods we are using. One is your alkaline or one is your acidic cleaning method. So alkaline we can generally do when we have purchased the new boiler, and in new boiler what we have observed that time they are prepared the different tubes and panels, so they do the huge amount of they use the oil and grease. So generally to removal of oil and grease we use the alkaline
क्लीनिंग मेथड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई अल्कली बॉयल आउट वी कैन डू, राइट. बट इफ as the long operation of boiler, if the depositions are there and these depositions are having the content of the calcium and magnesium, so in that case we generally do the acid cleaning. And in acid cleaning, generally in most of the and recommended by the BHEL, that we can do the hydrochloric acetic acid or EDTA and sulfamic acid. So these all we will have the very the low pH. We can prepare the solution of 4 to 5 pH. We can prepare the solution, and through that we can circulate the solution entire of the boiler part through the temporary piping, right? And as per their procedure, we can circulate 2 and 4 hours, then keep up for the hold up time, and then start the rinsing. So for cleaning, there is a might the some guideline is also there. We do as per the in the guidance of the expert who is doing this chemical cleaning, and for doing it, we generally make the some temporary arrangement of the piping tank where we prepare the solution of the chemical cleaning. We have the pumping system through which we are going to circulate entire the chemical into the boiler loops. Okay, so these things we can do in the process we can when we are doing the acid cleaning, right? So these things always you keep remember that both is the part of the boiler cleaning, but one is alkaline and one is acidic. Alkaline we do for removal of oil and grease content, and acidic cleaning we can do for the inside boiler deposition. Next, next is very important. Many times they are going to ask about the interview also, and some questions they are going to ask about this section also for priming, carryover, and foaming. So this topic definitely you have to remember and practice it. Very important. Priming means the carryover of water droplet along with the steam containing the water droplet of the liquid process to formation of the wet steam, that is called the priming. जो आपका स्टीम के साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स अगर का जा रहा है, तो दैट कॉल द प्रीमिंग. एंड व्हाई दिस कुड बी हैपन, व्हाट कुड बी द रीजन? सो द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ द डिजॉल्व सॉलिड्स. अगर पानी में कुछ ज़्यादा डिजॉल्व हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है. एंड सपोज वेरी वी हैव द हाई द स्टीम वेलोसिटी और ड्रम लेवल भी बहुत बार हम क्या रखते हैं कि जो हमारा मार्किंग रहता है NWL, we have the one marking that is called the NWL, normal water level. और ये नॉर्मल वाटर लेवल क्या होता है? ड्रम का ज्योमेट्रिकल जो सेंटर होता है उससे कम भी तो 50 to 100 mm बिलो ऑफ दैट, उसको बिलो हम रखते हैं. बट कभी कभी क्या होता है इंस्ट्रूमेंट वाले और वो उनका प्रॉपर जजमेंट नहीं हो पाता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है, वहां से वो गड़बड़ स्टार्ट होता है. तो वी हैव टू वेरी प्रिसाइज अबाउट दैट व्हाट वी हैव. एंड वो बहुत इजी है. जब आप गेज ग्लास को देखोगे देन यू कैन सी कि भाई हमारा फिजिकल में हमारा ड्रम का लेवल कितना आ रहा है, और ये ड्रम का लेवल हमारा ड्रम का ज्योमेट्रिक सेंटर है और नॉर्मल वाटर लेवल है उसके अप्रोक्स में आ रहा है या सही है या गलत है. इफ इट इज फाउंड रॉन्ग देन यू कैन इमीडिएटली कनेक्ट टू द योर इंस्ट्रूमेंट टीम टू डू द करेक्शन. ठीक है, नहीं तो क्या होगा, अगर लो होगा तो भी दिक्कत है, बराबर हाई होगा तो भी दिक्कत है. इफ इट इज ऑन हायर साइड देन क्या होगा कि आपका वेट वाटर है ना का वॉल्यूम ज़्यादा होगा और स्टीम का स्पेस कम होगा. ठीक है, तो उसके वजह से भी कैसे आपका कैरी ओवर होता है वो भी मैं आगे अभी बताऊंगा. ठीक है, बट अभी आप इतना समझ लीजिए. नेक्स्ट इज योर कैरी ओवर. सो कैरी ओवर क्या होता है कि अगर आपका कंप्लीट जो है सेपरेशन है स्टीम और वाटर मिक्सचर का अगर ड्रम में नहीं होगा तो कैरी ओवर होगा. मान लीजिए आपका जो प्राइमरी सेपरेटर है सेकेंडरी सेपरेटर है नॉट प्रॉपर फंक्शनिंग या नॉट प्रॉपर अलाइन या देयर इज ए गैप, तो भी चांसेस है कि दैट कैरी ओवर विल गो ऑन. अपार्ट फ्रॉम दैट लोड फ्लक्चुएशंस भी है कि भाई अभी सडन आपका ड्रम लेवल बहुत बढ़ गया, सडन आपका ड्रम लेवल कम हो गया, राइट?
मैकेनिकल सेपरेटर नहीं बढ़ रहा है, नहीं काम कर रहा है, एंड वी हैव द हाई ड्रम लेवल पे अगर आप बॉयलर ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। देन फोमिंग, लास्ट पार्ट इज योर फोमिंग। सो फोमिंग का एक ही पर्पस है कि भाई देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप टीएसपी डालते हो ना, ठीक है, बराबर, या कुछ जब भी हम डीएम वाटर यूज कर रहे हैं एंड इट विल हैविंग द सम वी कैन से द मिनरल ऑयल कंटेंट हो सकता है, या उसमें टीओसी, यस टीओसी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन। आप सीधा ये समझ लो कि अगर फीड वाटर जो हम बॉयलर में डाल रहे हैं उसमें अगर हाइड्रोकार्बन का प्रेजेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा कि दैट क्रिएट द फोम, ठीक है। और वो फोम क्रिएट होने से की वजह से भी क्या होता है कि आपका जो है फ्यूम्स और स्लज वो ज्यादा फाइन होगा, और वो भी कैरी ओवर हो सकता है, वो भी कैरी ओवर होगा, ठीक है। सो दीज आर द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट विद द वेरी फाइन थिंग रिलेटेड टू योर boiler and drum, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न द प्रैक्टिस अबाउट द सिलिका डिपॉजिट। भाई सिलिका डिपॉजिट के बारे में बहुत कुछ बात करना है और बहुत डिटेल में हम इसको बताएंगे कि इफ what could be the major reason of the silica deposit and how it is going to impact in the big way। लेकिन अभी एक चीज समझ लीजिए जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पानी में जो सिलिका है ना, इट इज मेजर्स टू पार्ट। एकदम आप चाहो तो इसको नोट कर लो, और अदरवाइज दिस ऑल गोइंग टू रिकॉर्ड ऑल्सो, ठीक है। तो देखते हैं कि शायद रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो दैट इज मोर एंड मोर फाइन, मोर एंड मोर फाइन, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि मेनी टाइम्स यू हैव हर्ड अबाउट दैट कि भाई कोलाइडल सिलिका है और नॉन कोलाइडल है। तो इसमें थोड़ा सा चीज को और मैं आपको ब्रीफ करता हूँ, आपको बहुत बहुत आपके कैरियर में फायदा करेगा ये चीज, आप समझ लो अभी कि जो कोलाइडल सिलिका है, ठीक है, वो नॉन रिएक्टिव है। कोलाइडल सिलिका नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि इट इज नॉट गोइंग टू रिमूव थ्रू योर आयन एक्सचेंज प्रोसेस और योर आरओ में भी वो नहीं निकलेगा, इट ओनली गोइंग टू रिमूव थ्रू द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। कोलाइडल सिलिका। नॉन कोलाइडल सिलिका क्या है, दैट इज कॉल्ड द रिएक्टिव सिलिका, और वो उसका कुछ मेजर पार्ट जो है आपका कैलिफोकुलेटर में भी निकलता है, एंड ऑल्सो दैट इज कॉल्ड योर सिलिकेट आयन। तो वो भी आपका जो है सिलिकेट आयन क्या है, वीक है, सो दैट गोइंग टू रिमूव थ्रू द स्ट्रॉन्ग एनायन, ठीक है ना। जो एनायन के जो बेड होते हैं ना, उसमें दो बेड होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेड एनायन और एक होता है वीक बेड एनायन। तो ये निगेटिव आयंस है, ये वीक है, तो ये कहाँ पे निकलेगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस में निकलेगा, ठीक है। तो पहले क्या होता है, WBA होता है सिक्वेंसली। अगर हम डीएम प्लांट में देखें तो सबसे पहले क्या आता है, कटायन के बेसर आएगा, कटायन के बाद फिर डिगेसर आता है, डिगेसर के बाद आपका WBA आता है, फिर उसके बाद SBA आता है। सो WBA में क्या होता है, वीक बेस एनायन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आयंस आपका निकलेगा, ठीक है। जैसे सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये सब चीजें उसमें निकलता है। और ये सिलिकेट आयन है, सो दिस सिलिकेट आयन जो है सिलिका का, ये रिएक्टिव है, नॉन कोलाइडल है, एंड दिस ओनली गोइंग टू रिमूव थ्रू योर SBA। ये चीज एकदम आप नोट कर लो, ये बहुत बार बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये प्रैक्टिकल भी है। मान लो आज के 4 साल 5 साल बाद यू बिकम्स द इंचार्ज, ठीक है ना, तो आपको ये चीज तो भाई सिलिका तो ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू मेक द ट्रबल, ठीक है। तो ये चीज मान लो कि बोलेगा सिलिका बढ़ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये सिलिका जो बढ़ रहा है, तो हमको कौन सा वेसल को अपने को आइडेंटिफाई करना है, कौन से वेसल्स में हमारा सिलिका जो है निकलता है ना, जिसको हम बोल रहे हैं रिएक्टिव सिलिका की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू कोलाइडल सिलिका, और नॉन रिएक्टिव सिलिका की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दैट थिंग। चलो, और इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि कभी कभी हमने अभी ऐसा भी देखा है कि मानसून सीजन जैसे ही आता है ना, तो भी हमारा सिलिका बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि दैट कम्स थ्रू द रिवर पॉन्ड्स के साथ जो मानसून का वाटर आते हैं, तो दैट विल हैव द
लिटिल बिट मोर सिलिकॉन। अभी एक चीज इसमें देखो कि भाई विच वन इज करेक्ट, राइट, विच वन इज करेक्ट। एक साइड आप देख रहे हो द ग्रे कलर ऑफ योर ड्रम एंड वन साइड यू आर लुकिंग द रेडिश कलर ऑफ ड्रम, सो विच वन इज करेक्ट, ये थोड़ा सा हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं, राइट। यस, व्हाट यू थिंक अबाउट, कौन सा सही है, रेडिश विल करेक्ट और ग्रे विल करेक्ट? यस, उत्सव, जैमिन, निधि, तोरण, रेडिश। रेडिश करेक्ट है। चलो, अब उत्सव ने बोला है रेडिश करेक्ट है, तो उनका भी एक अलग प्रोस्पेक्टिव है, वो भी मैं बताऊंगा कि वो रेडिश को क्यों करेक्ट बोल रहे हैं। और यस, जैमिन आपने देखा है, और यस तोरण, निधि, आपने खुला हुआ ड्रम देखा है? देखो, आप बताओगे तभी मैं इसको और बेटर आई कैन एक्सप्लेन इट। देखो, इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भी बताने वाला हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई वाई उत्सव टोल्ड दैट रेडिस उन्होंने देखा है, ठीक है, रेडिस के बारे में। तो मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक्चुअली जो है हमारा, अगर सब क्रिटिकल बॉयलर्स है, कौन सा है, सब क्रिटिकल बॉयलर्स है, मतलब विच इज ऑपरेटिंग प्रेशर बिलो ऑफ 220, तो 220 से जो नीचे है ना, उनका कभी रेडिश नहीं रहेगा, उनका कभी भी रेडिश नहीं रहेगा, दिस इज माई गारंटी। आप 1000 भी बॉयलर देख लो, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि उनका जो ऑपरेशन फिलोसफीज है, व्हाट दे आर डोजिंग इट, ठीक है, और उनका डोजिंग पैटर्न क्या है, डोजिंग का फिलोसफी क्या है, आई नो इट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ग्रे ही आएगा। आपको अभी है या कभी भी अब देखना, ठीक है, एंड यू फील कि भाई ये ऐसा है वैसा है, आप एक बार जरूर मेरे को कॉल करना, 100% आप मेरे को कॉल करना, ठीक है। तो उसमें जो है सब क्रिटिकल्स में आपका ऐसा रहता है, लेकिन अब बात कर रहा हूँ सुपर क्रिटिकल का, विच इज उत्सव जो वर्क कर रहा है ना, उत्सव वर्क कर रहा है आपका LNT का एक प्लांट है पंजाब में, क्या नाम है, LNT का एक प्लांट उधर राजपुरा, ठीक है। सो दैट यूनिट इज 700 मेगावाट। कितने मेगावाट का है, 700 मेगावाट का है, एंड डेडिकेटेड फॉर द पावर नॉट टू द प्रोसेस, ठीक है। तो वो जो बॉयलर ऑपरेट हो रहा है ना, दिस इज योर सुपर क्रिटिकल बॉयलर। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स का ना डोजिंग पैटर्न अलग है, माय डियर फ्रेंड। हम लोग यहाँ TSP डोज करते हैं, वहां वो तो ड्रमलेस है भाई। भाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारा जो सब क्रिटिकल बॉयलर्स है, तो उसमें क्या होता है, ड्रम होता है, 30 केजी का बॉयलर हो, 40 केजी का हो, 50 केजी, 60, 100, 150, 200 तक जो है वो क्या है, अपना 220 तक जो है वो जनरली क्या है, हमने देखा है कि जो 500 मेगावाट के जो यूनिट है ना, 500 मेगावाट का यूनिट जो है, उसका डिजाइन प्रेशर जो है 180 केजी है, ठीक। लेकिन 500 मेगावाट से जैसे ऊपर वाला जब हम जाते हैं, तो उसके ऊपर वाला रेंज में आ जाता है 600 मेगावाट, 700 मेगावाट। तो उसको हम अब 180 केजी पे नहीं ऑपरेट करते हैं, उसको सीधा 220 से ऊपर ऑपरेट करते हैं, 225, 230 उनका ऑपरेटिंग प्रेशर होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, वो 20 बॉयलर आर ड्रमलेस, उसमें ड्रम नहीं है,
तो टीएसपी सब डोज नहीं होता है, लेकिन हाँ टू मेंटेन द वाटर क्वालिटी। यस उत्सव, अभी आपके बारे में ही बात कर रहा था। बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जो मैं आप अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं वही चीज अभी रिपीट किया कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो दोनों पिक्चर्स देख रहे हो ना, बोथ आर करेक्ट बट इन द डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जो आप जैसे उत्सव ने बताया कि वो अपने ड्रम का कलर रेडिश देखता है, ही इज करेक्ट। और अभी बाकी जो लोग हैं, दे ऑब्जर्व दैट द ग्रे कलर, दे ऑल्सो करेक्ट। अब मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूं भाई, ये कहीं पे भी कभी भी आपके कोई सीनियर ने भी नहीं बताया होगा। जो चीज आज मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूं, और ना आपको कोई यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको खुद बहुत जगह पे ढूंढा, देखा, देखते देखते ये चीज को ऑब्जर्व किया हूं, ठीक है। और नाउ वी हैव गॉड फॉर्चून दैट यू ऑल पीपल आर हियर, कि कुछ लोग जो हैं सब क्रिटिकल से भी हैं और कुछ लोग सुपर क्रिटिकल से हैं। तो जो सब क्रिटिकल में होता है क्या, वहां पे हमारा ड्रम रहता है। सो ड्रम में हम क्या डोज करते हैं, टीएसपी डोज करते हैं, ठीक है, ट्राइसोडियम फास्फेट डोज करते हैं। फिर उसका जो भी पैटर्न रहता है कि हमको इतना पीएच इतना फास्फेट मेंटेन करना है। तो वहां पे क्या होगा, जो लोग, मैं अभी ओपन बोल रहा हूं क्योंकि मैंने कम से कम भी तो 400-500 बॉयलर्स को देख लिया है, ठीक है। जो लोग सब क्रिटिकल में काम कर रहे हैं, ऑलवेज उनका बॉयलर का, ड्रम का जो कंडीशन होगा ना, वो ऐसा होगा। बट जो सुपर क्रिटिकल में हैं, ठीक है, सुपर क्रिटिकल में जो काम कर रहे हैं, वहां पे क्या है, वो तो ड्रमलेस है। तो वहां पे हम टीएसपी डोज नहीं करते हैं, वहां पे हम डोज करते हैं FeOOH यूज करते हैं। यस उत्सव, इट इज करेक्ट और नॉट? आप LNT राजपुरा में काम कर रहे हो ना? यस सर। यस, तो आपका जो रहेगा ना, आपका या कोई भी सुपर क्रिटिकल बॉयलर होगा, तो उनका ग्रेड नहीं होगा। उनका ये जो ड्रम्स का जो है, वहां पे सेपरेटर उसको बोला जाता है, ड्रम नहीं रहता है, वो तो ड्रमलेस है। तो सेपरेटर्स जो रहेगा, वहां पे जब उसका कलर आप देखोगे, दैट इज योर रेडिश। करेक्ट और नॉट? यस करेक्ट। ठीक है। लेकिन जो बाकी जो सूप है उत्सव, आप भी अपने जो भी फ्रेंड होंगे गुजरात में, जहां पे भी, उनसे आप पूछना, तो वो लोग सभी यही बताएगा कि भाई उनका जो ड्रम्स जो है वो ग्रे कलर का है, ठीक है। तो ये चीज डिफरेंट है, दोनों में डोजिंग भी डिफरेंट है। डोजिंग पे भी मैं आगे आऊंगा कि हम कहाँ पे क्या डोज कर रहे हैं, ओके। So that is very much important, right? That is very much important, ठीक है। तो इसलिए देखो, दोनों ही सही है, बट जहां पे हम सुपर क्रिटिकल बॉयलर यूज कर रहे हैं, वहां पे आपका जो रहेगा वो रेडिश में रहेगा, और जहां पे आपका सब क्रिटिकल बॉयलर्स है, वहां पे जो ड्रम्स का जो कलर्स होगा वो ग्रे कलर में होगा। हाँ, अगर आपका सब क्रिटिकल बॉयलर है, मतलब बिलो 220 है, और इफ यू आर गेटिंग द रेडिश कलर, तो प्रॉब्लम है, डोजिंग इज नॉट प्रॉपर, ठीक है। तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आई हैव चूजन बोथ द टू पिक्चर्स, ओके। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर कि भाई जो सुपर क्रिटिकल होगा, तो वहां पे उनका ड्रम का कलर रेडिश ही रहेगा। वहां पे डोजिंग हम क्या कर रहे हैं, वो ड्रमलेस है। वहां पे हम जो भी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो FeOH यूज कर रहे हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे जो हम यूज कर रहे हैं, दैट इज योर TSP और DSP मॉर्फ। और हम कभी कभी अगर TOC ज्यादा रहता है, तो कॉस्टिक के प्लेट भी यूज करते हैं। चलो, नाउ अब मेन पार्ट पे आते हैं कि भाई कोरोजन इन बॉयलर ट्यूब्स जो हो रहा है, इसको हम कैसे क्या रूट कॉज है एंड हाउ वी कैन प्रिवेंट इट। तो देखो, इस तरह का आपने देखा है
मतलब देख रहे छोटे 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 गड्ढे हो गए हैं, ट्यूब्स में छोटे छोटे गड्ढे हो गए हैं, ठीक है। सो भाई ये एकदम ऐसा ही रहता है, बिल्कुल ऐसा रहता है ना। जैसे मान लो ना कि आपको हम कैसे इस चीज को तुम फील कराएं। आप समझो कि बुखार लगता है, बुखार तो लगा होगा कभी ना कभी, तो बुखार लगता है, सो व्हाट यू फील, है ना, कि भाई बदन दर्द करता है, सिर दर्द करता है, खाने का टेस्ट बदल जाता है। ऑलवेज जब भी बुखार लगा होगा, है ना, जब भी बुखार लगा होगा तो यही आपको फील होता है। सेम चीज अगर बॉयलर में इस तरह के यू ऑब्जर्व दैट छोटे 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 गड्ढे हो गए हैं, दैट कॉल द पिटिंग। और ये जो पिटिंग है ना, इस तरह की जो पिटिंग्स आप जो देख रहे हो ना, छोटे 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 पिटिंग्स तो देख रहे हो, दैट ओनली ड्यू टू द ऑक्सीजन कोरोजन और ऑक्सीजन पिटिंग। बस इसमें और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस पर इतने सारे लिटरेचर, इतने सारे बार रिसर्च हो चुका है कि भाई अब ये प्रूवन हो गया है, अब ये प्रूवन हो गया है कि आप सैंपल देख करके, सपोज मैं तो 400-500 बॉयलर को देख चुका हूं, तो आप उसके ट्यूब को, सैंपल्स को देख करके भी बता सकते हो कि भाई दिस काइंड ऑफ फेलियर, दिस इसमें यही चीज होगा। अब उसके बाद आप सोचना चालू करो कि अगर ये हो रहा है मींस द ऑक्सीजन पिटिंग इज हियर। तो अब अगर ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, सो व्हाट वाज द रूट कॉज टू प्रिवेंट इट। ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? आपका डेरिएशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आप डेरिएटर का टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मेंटेन कर रहे हो, क्योंकि ऑक्सीजन और वाटर का टेम्परेचर के बेस पे ना एक सॉल्युबिलिटी कर्व है, तो वो प्रॉपर मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो कभी कभी क्या करते भाई, इतना बेस्ट थिंग है ना स्टीम इंजीनियरिंग कि उसमें सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज हैपन ड्यू टू द सम थ्योरी, और वो कुछ ना कुछ थ्योरी को सपोर्ट करता है, और उसी के थ्योरी के बेस पे इंटायर बॉयलर डिजाइन आ गया। तो मान लेते हैं कि आपका बॉयलर का लोड कम हो गया, ठीक है, मान लेते हैं कि हम बड़ा बॉयलर चला रहे हैं, 400 टन का, 500 टन का, 1200 टन का चला रहे हैं, ठीक है। अब बॉयलर का लोड कम हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, डेरिएटर का भी तो लोड कम होगा, राइट। बट हम उसका जो भी प्रेशर है, टेम्परेचर है, सपोज अगर आप मेंटेन प्रॉपर नहीं करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी है, देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज द सॉल्युबल इन वाटर, ऑक्सीजन इज सॉल्युबल इन वाटर, वो पानी में घुलता है, तभी तो यार मछलियां वो पानी में जिंदा रहती है ना। भाई मैं ऐसा आपको बता दूंगा कहानी की तरह ना, वाटर केमिस्ट्री और पूरा बॉयलर, कि आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमको समझना है कि ये जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये कैसे आया, व्हाट द रूट कॉज, कहां से वो आ रहा है। आइदर हमारा जो डेरेशन के लिए जो मेन फंक्शन इक्विपमेंट है डेरेटर, वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है क्या, उसके जो वेंट हैं वहां से वेंटिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है क्या, जो उसके जो फ्यूम्स जो निकलते हैं वो प्रॉपर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जो हम एक्चुअली डिजाइन क्या रहता है कि मैकेनिकल डेरेशन इट शुड बी इनफ टू गेट द 7 ppb, है ना, उतना से ही आ जाना चाहिए। बट वी कैन श्योरिटी कि भाई हम वी आर पुटिंग द हाइड्रोजन, वी आर पुटिंग द मेको, वी आर पुटिंग द डेहा एंड अदर ऑक्सीजन कैवेंजर, ठीक है, बराबर। बट अभी ये भी प्रूवन हो गया कि what could be the best way and where we should dose the oxygen scavenger, कहां पे डोज करना चाहिए, डेरेटर में डोज करना चाहिए, बीएपी सक्शन में डोज करना चाहिए, कहां डोज करना चाहिए, ठीक है, तो वो पार्ट भी है इसमें। तो ये अगर चीज हो रहा है, अभी उस पर नहीं जाएंगे, अभी ये पे जाएंगे कि इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, है ना, ऐसा देख रहे हो छोटे 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 ट्यूब के अंदर गड्ढे हो गए हैं, तो
it is only indicating the oxygen pitting. This is only indicating the oxygen pitting. तो केवल आपको ये इस पर काम करना है कि भाई हमको ऑक्सीजन प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए वी नीड टू इंस्पेक्ट द डिएरेटर, उसके ट्रे प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके नोजल प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, कि उसके नोजल कुछ गिर गए हैं क्या ट्रे पे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑपरेशन साइड से व्हाट द टेम्परेचर एंड प्रेशर वी आर मेंटेनिंग, वो उसका सॉल्बिलिटी को, ऑक्सीजन की सॉल्बिलिटी को प्रिवेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वहां से उसको निकालेगा कि नहीं निकालेगा, है ना। वो बिलो तो नहीं हो रहा है, तो होगा तो क्या होगा, वो निकल ही नहीं पाएगा, ऑक्सीजन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि क्या होगा, गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी, तभी तो निकल पाएगा ना। प्रेशर से क्या होता है, प्रेशर से जैसे हम पार्शियल प्रेशर देते हैं तो जो भी उसमें गैसेस है दिस कम्स आउट फ्रॉम द सिस्टम, तो ये चीज है, ठीक है। नाउ अनदर वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज योर एसिड कोरोजन। अब देखो, अब ये चीज वो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें जितने सारे चीज है ना, दिस ऑल आर वेरी क्लोज टू मी। अब एसिड कोरोजन है, आप कैसे समझोगे कि एसिड कोरोजन हो रहा है और क्या, हाउ आई कैन अंडरस्टैंड इट। तो देखो कभी कभी क्या होता है कि आपका डीएम वाटर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर, ठीक है। सो उसमें अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, तो अगर उसमें HCl, ठीक है, या जो अभी हमने बोला था ना CaCO3 कार्बोनिक एसिड, अगर वो आ जाता है और वो आपके फीड वाटर का पीएच को कम कर देता है, देन द थ्रेड ऑफ द एसिड कोरोजन। इसीलिए वी हैव वेरी 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 नैरो बेंड टू ऑपरेट टू मेंटेन द फीड वाटर पीएच, है ना। तो ये देखो आपके पास बहुत कम ही मतलब स्कोप है, आपको जनरली कितना रखना रहता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि सबका बॉयलर अलग अलग है, कोई 40 केजी प्रेशर का ऑपरेट कर रहा है, कोई 80 केजी का कर रहा है, कोई 100 का कर रहा है, और उत्सव हो सकता है वो सुपर क्रिटिकल कर रहा है, तो उसका प्रेशर और भी ऊपर है ना, 220 से ऊपर है। बट एक जेनरिक जो मैं चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे 100 केजी का, कि भाई उसके लिए जो पीएच का जो रेंज है फीड वाटर का, वो 9.3 से लेकर मैक्स टू मैक्स आपका 10.5 तक ही है। आपको उसी विद इन द रेंज आपको ऑपरेट करना है, उससे कम होगा तो आप ये देखो बात कर्व है, इस बात कर्व में यू कैन ऑब्जर्व दैट कि भाई वो जितना वो एसिडिक हो रहा है, द रेट ऑफ कोरोजन, रेट ऑफ एसिडिक कोरोजन विल बी ऑन हायर अटैक, ठीक है। और अगर मान लो 9.5 9.6 से ऊपर बढ़ रहा है, 11 जा रहा है, देन इट द केस ऑफ द कॉस्टिक कोरोजन, तो उसको कॉस्टिक गोजिंग भी बोलते हैं या कॉस्टिक कोरोजन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या होता है कॉस्टिक में। इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज है, या तो आपका एल्कलाइन का कंटेंट बहुत बढ़ गया है, या जो आपने टीएसपी डाला, तो टीएसपी में भी क्या होता है, वी हैव द वेरी अमाउंट ऑफ द Na3PO4, तो वो जो ब्रेक करके वो क्या बना दे रहा है, फ्री कॉस्टिक बना दे रहा है। NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा है पानी में, है ना। तो NaOH बढ़ रहा है मतलब इसको बोलते हैं कॉस्टिक बढ़ना, बराबर। तो अगर ये कॉस्टिक बढ़ेगा तो ये क्या कर रहा है, NaOH रिएक्ट विद द Fe3O4। Fe3O4 क्या है, यही आपका मैग्नेटाइट लेयर है, राइट, ये आपका क्या है, मैग्नेटाइट लेयर है, ठीक है। तो उसको वो क्या कर रहा है, ब्रेक कर दे रहा है, उसको डिसॉल्व कर दे रहा है ना। और फिर क्या कर देगा, वहां से उसको, उसमें से वो स्टार्ट द कोरोजन, और इस तरह से आप देखोगे कि ग्रूविंग हो जाती है। ये जो ग्रूविंग हो रहा है, दिस ओनली ड्यू टू योर प्रेजेंस ऑफ द कॉस्टिक, इसलिए इसको कॉस्टिक गॉजिंग बोलते हैं। और ये कैसे हो रहा है कि जब आपका ड्रम में वी आर गोइंग टू डोज द हायर अमाउंट ऑफ द कॉस्टिक डोज करते हैं, उसकी वजह से हो रहा है, या मान लो कंडेंसर लीक हो रहा है उसकी वजह से आ रहा है, या जो डीएम वाटर है उसमें ही अगर एक्सेस आ रहा है तो उसकी वजह से है। तो फ्रॉम दैट वे वी कैन प्रिवेंट इट। नाउ
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने एक केस स्टडी भी अटैच किया है, और वो केस स्टडी आप सब लोग डेफिनेटली आपने देखा होगा। जस्ट फिर भी मैं वो पिक्चर थोड़ा सा दिखा देता हूँ अभी, ठीक है, सो दैट यू कैन रिमाइंड इट। अभी बहुत कुछ बाकी है। कहाँ गया? इसमें नहीं है लगता है। पार हो गया क्या? चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज अबाउट योर हाइड्रोजन एम्बिटरमेंट। अभी हाइड्रोजन एम्बिटरमेंट क्या हो रहा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपका फ्री कॉस्टिक बढ़ रहा है ना, तो वो क्या कर रहा है आपका, पहले तो मैग्नेटिक लेयर को डिस्टर्ब कर दिया। मैग्नेटिक लेयर को डिस्टर्ब करने के बाद उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। और ये हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन क्या है, एकदम फ्री है। तो ये तुरंत जाता है कि ही बिकम्स द स्टेबल। ठीक है, सो इट अगेन रिएक्ट विद द फेरिक कार्बाइड, क्योंकि आयरन में क्या है, कार्बन का कंटेंट तो है नहीं, उसके साथ मिलकर के क्या बना लेता है, CH4 प्लस 3Fe। ठीक है ना, मतलब आयरन को ये बाहर कर दिया, ये खुद स्टेबल हो गया मीथेन। और ये क्या होता है, जैसे जैसे आपका गैस का प्रेशर बढ़ते जाता है मेटल इनसाइड में, तो वो मेटल का जो ग्रेन बाउंड्री है ना, उसको वो ब्रस्ट कर देता है। और इसकी पहचान यही है कि ये आपका लॉन्गिट्यूडनल ही ब्रस्ट होगा, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल ही ब्रस्ट होता है इसी तरह से। तो इसका एक एग्जांपल आपको जस्ट अभी बता देता हूँ। एक टाटा स्टील का एक प्लांट, अपना टाटा स्टील और ये ने एक प्लांट एक्वायर किया, भूषण। ठीक है, आज से 4 साल 5 साल पहले। तो उसमें मेन स्ट्रीम लाइन में उनका जो फेलियर है ना, वो आपका हाइड्रोजन इनबिटरमेंट ही है। ठीक है, वो मैं अभी आपको देखता हूँ इसमें होगा या फिर कोई दूसरे प्रेजेंटेशन में होता है, तो मैं उसको फोटो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ द हाइड्रोजन। और ये कैसे हुआ, ड्यू टू योर प्रेजेंस ऑफ द कॉस्टिक। कॉस्टिक बढ़ रहा है इसके वजह से। और फिर पूछोगे सर ये कॉस्टिक बढ़ा, तो ये पहले भी तो कॉस्टिक बढ़ा था। नहीं, ये ओनली कहाँ पे होगा, जहाँ पे मैक्सिमम हीट अफेक्टेड जोन होगा। ठीक है ना, या तो मेन स्ट्रीम लाइन में हो सकता है, या फिर वाटर वॉल वेयर वी हैव द बर्नर्स, वहीं पे होगा, हर जगह नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत प्रिसाइज है हाइड्रोजन एम्बिटरमेंट। नाउ कम टू द वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज अबाउट द फॉस्फेट हाइडआउट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपका जैसे जैसे हम मेंटेन करने के लिए पीएच और फॉस्फेट को मेंटेन करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, टीएसपी डाल देते हैं, Na3PO4 प्लस वो वाटर से करके Na2HPO4 प्लस NOH निकाल देता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, NOH ये फ्री रहता है। तो इसका जो क्या होता है, कोऑर्डिनेट फॉस्फेट जो प्रोग्राम है, वो तो हमारा एक कर्व है कि जो बॉयलर का ऑपरेटिंग प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग ही अपने को Na और फॉस्फेट का रेशियो को मेंटेन करना है। ठीक है, बराबर। तो ये हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इसमें हम क्या बोलते हैं, वेक्टर डायग्राम से भी हम इसको निकालते हैं। ठीक है, सो जनरली क्या रहता है, इफ वी हैव द आवर ऑपरेटिंग प्रेशर इज 100 kg, so for that we are going to maintain the phosphate is approx 8 to 10 ppm हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कोरोजन ड्यू टू द फैटिक क्रैक। अच्छा, अभी फैटिक चीज क्या होता है, फैटिक बोलते हैं कि भाई आप भी डेली ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, प्लांट जा रहे हो, प्लांट से आ रहे हो, तो क्या हो जाता है, वी फील टायर्ड। इन द सिमिलर वे आवर बॉयलर ऑल्सो फील टायर्ड। आप लोड बराबर स्विंग कर रहे हो, कभी 100 टन पे चला रहे हो, कभी आप उसको 150 टन पे चला रहे हो, फिर आप उसको 80 टन पे कर दे रहे हो। सो ड्यू टू द स्विंग ऑफ लोड और रिवर्सल ऑफ लोड, ठीक है ना, क्या होता है कि आपके जो बॉयलर के जो जॉइंट्स हैं,
है ना, वाटर वॉल के जॉइंट्स हैं, हैंगिंग ट्यूब्स के जॉइंट्स हैं, सो देयर डेवलप द स्ट्रेस, वहां पे ही स्ट्रेस डेवलप होता है एंड स्टार्ट क्रैकिंग, ठीक है, और वो क्रैक डेवलप होता है। सो दिस इज ड्यू टू द फैटिक, फैटिक क्रैक बोलते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर कोल्ड इनकोरोजन। सो कोल्ड इनकोरोजन कहाँ पे होगा, जहां पे आपका ये जनरली आपका कहाँ पे रहता है, इकोनोमाइजर में, जहां पे वी हैव द सल्फर इन द फ्लू गैस,